Welcome to the 29th video on As You Like It by William Shakespeare. नाटक As You Like It, जिसके नाटककार विलियम शेक्सपियर हैं, पर बनी इस 29वीं वीडियो में आपका स्वागत है. In the 29th video, we shall see Act 3, Scene 3, पार्ट बी. इस 29वीं वीडियो में हम एक्ट 3 सीन 3 का पार्ट बी देखेंगे. इन दिस सीन वी गेट टू नो द स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ वेरियस माइनर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. ऑड्रे, very much like Corin and later like William, is a realistic country lass. Continuing from the previous video, we see that the factor of minor characters is being carried forward. And here in this scene also, we see the role of the minor characters and their specific traits. Like we see that Audrey, she is a country lass, very realistic and very down to earth. She doesn't know poetry, she doesn't know philosophy. She is very straightforward in her statements, and she is a bit different from the other characters. At places she matches them, but at places she is very different from the other characters like Corin, William and the rest of the characters. Her personality is, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले वीडियो से जारी करते हुए हमने माइनर कैरेक्टर्स वाले पक्ष को की चर्चा करी है, और उस चर्चा में हमने देखा है कि ऑड्रे का जो पात्र गढ़ा गया है वो यथार्थवादी पात्र है, और ऐसा पात्र है जो ज्यादा लाग लपेट नहीं जानती है, स्पष्ट बात करती है, और उसे बहुत ज्यादा परेशानी या चिंता या कुछ चिंतन भी नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है. वो अपने तरीके से जीती है. उसके कुछ लक्षण या कुछ गुण बाकी के पात्रों से मिलते हैं और कुछ गुण बाकी के पात्रों से बहुत भिन्न भी हैं. तो यहाँ पर उसका जो ग्रामीण परिवेश है और उसका यथार्थवादी व्यक्तित्व है वो हमें देखने को मिलता है. Her personality is different from others. All are contrasts to the pastoral lovers, Silvius and Phoebe. So we see that the personality of Audrey is a different one, and in totality, all the characters, they are different from the two characters Silvius and Phoebe. यहाँ पर हम ऑड्रे के पात्र को तो देख ही रहे हैं जो बाकी के पात्रों से थोड़ी सी अलग बनाई गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ बाकी के सभी पात्र अगर एक साथ रखे जाएं तो सिल्वियस और फीब से सभी पात्र बिल्कुल अलग नजर आते हैं. The relationship between Audrey and Touchstone is very realistic. This couple is connected with carnal love, not with chaste, romantic, poetic love. Now, this factor is very important because this couple has been developed. There are two characters, and these two characters put as a couple have been developed on a realistic plane where their connectivity is on a carnal level, on a physical level. They do not believe in the chaste, romantic, poetic love. They believe in physical love. यहाँ पर ये जो जोड़ी बनाई है पात्रों की, टचस्टोन और ऑड्रे की, इस जोड़ी को यथार्थवादी बनाया गया है, और ये बाकी के पात्रों की तरह दार्शनिकता पर या काव्यात्मिकता पर अपने प्रेम को फोकस नहीं करते हैं.
ये उस तरह के प्रेम में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं जिसमें बहुत पवित्रता हो, बहुत सुंदरता हो, बहुत काव्यात्मकता हो, बहुत दार्शनिकता हो। ऐसी इनकी कोई इच्छा नहीं है। इन्हें बिल्कुल यथार्थवादी और फिजिकल, शारीरिक पक्ष जो है प्रेम का, वही पसंद है। टचस्टोन सेज वी मस्ट बी मैरिड और वी मस्ट लिव इन बॉर्डरी। We find this in a statement of Touchstone where he says that we must be married or we must live in Bawdry. ये बात हमें टचस्टोन के एक स्टेटमेंट में, एक डायलॉग में भी देखने को मिलता है। उसने अपने वक्तव्य में कहा है कि या तो हम शादी कर लें या हम बिल्कुल आवारा लोगों की तरह या अश्लील अशिष्ट लोगों की तरह जिएंगे। This statement is very realistic. It endorses the fact that in those days too, people were keen on focusing on their physical desires and demands from life. Now, the beauty of this statement, although it does look a little bit outspoken, it looks a little bit maybe not very gentle, not very sophisticated, but still there is a peculiar point in this dialogue or in this statement which draws our attention. And that point is that we have demands from life. We have desires from life. In general, if we talk of all the human beings, all of us have demands from life. So here, the bold characters, only they can come out with this aspect of life. यहाँ पर ये जो वक्तव्य टचस्टोन के मुंह से बुलवाया गया है शेक्सपियर द्वारा, ये देखने में बहुत शालीन नहीं लगता है, बहुत शिष्ट नहीं लगता है, लेकिन इसमें एक यथार्थ है। और वो ये यथार्थ है कि इस जगत में जितने लोग हैं उन सब की अपने जीवन से एक मांग है, अपने जीवन से एक अपेक्षा है, और वो अपेक्षा है जीवन से अपने जो भौतिक सुख हैं या भौतिक तृप्ति है उसको लेकर के हम अपने जीवन से कुछ मांगते हैं। अब ऐसी बात को अशिष्ट मान करके कवि या नाटककार अपने नाटक में नहीं दिखाते हैं, लेकिन शेक्सपियर ने टचस्टोन और ऑड्रे के पात्र के माध्यम से ये दिखाया है कि ये भी जीवन का एक पक्ष, एक पहलू है। Contrast this realism with the verbal extravagances of Sylvius. Now we can compare this. We can see the contrast between what Touchstone and Audrey say about love and what Sylvius and Phoebe think about their love. अब यहाँ पर एक तुलनात्मकता दर्शाई गई है। एक प्रेम उस जोड़ी के माध्यम से दिखाया गया है जो टचस्टोन और ऑड्रे की है, जिसमें शारीरिक प्रेम को दिखाया गया है, और दूसरी ओर एक जोड़ी सिल्वियस और फीब की बनाई गई है। इस जोड़ी का जो प्रेम है वो बिल्कुल अलग तरह का, जिसमें भौतिकता या शारीरिकता बिल्कुल नहीं है, वो दिखाया गया है। The statement of Sylvius is to be noted here. Then shall you know the wounds invisible that love's keen arrows make, Sylvius says to Phoebe. Now Sylvius says, you don't know how deep your arrows strike me and what wound, what incision they create in my heart. सिल्वियस का प्रेम बहुत पवित्र और काव्यात्मक है, और वो अपनी प्रेमिका फीब से कहता है कि तुम जो घाव मुझे देती हो उसके तीर कितने गहरे चुभते हैं और उससे मुझे कितना दर्द होता है, ये तुम कभी भी नहीं जान पाओगी। His words are colored with a profusion of poetic romance, sporadically scattered through the dialogues of various characters. Now here, the dialogues of Sylvius, they are very colorful and poetic. यहाँ पर
सिल्वियस के माध्यम से जो डायलॉग्स बुलवाए गए हैं वो बहुत ही रंग बिरंगे, बहुत ही रौनक वाले और बहुत ही अलग तरह के दिखाए गए हैं. Orlando also reaches these poetic heights through the poems he writes and hangs on the trees in the forest of Arden. And the same type of love has been shown through the character of Orlando, where he hangs his love poems on the trees in the forest of Arden. So that someday Rosalind will come and have a look at these and she will come to know how much I love her. और इसी तरह का सिल्वियस और फीब वाला ही प्रेम, उसी तरह का प्रेम ऑरलैंडो के माध्यम से भी दिखाया गया है, जिसमें ऑरलैंडो कविताएं लिखता है और पेड़ों पर टांगता है, इस विश्वास में, इस आशा में कि किसी दिन रोजालिंड आएगी और मेरी लिखी हुई इन कविताओं को पढ़ेगी और जानेगी कि मैं उसे कितना प्रेम करता हूं. टचस्टोन्स वूइंग ऑफ ऑड्रे is particularly humorous because she never understands the scuffling verbal wit of his conversation at all. Now here there is one more interesting factor, that Touchstone is wooing Audrey, but Audrey does not understand anything about his scuffling verbal wit. She doesn't understand what he is saying, how he is saying, what is the underlying meaning of what he says. She has no business to understand anything in depth. यहाँ पर टचस्टोन और ऑड्रे के प्रेम में एक और बात बहुत मनोरंजक दिखाई देती है कि टचस्टोन गंभीरता से या गहराई से यदि कोई बात बोलता है तो भी ऑड्रे को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता और उसे कोई इच्छा भी नहीं है कि वो प्रयास करे समझने की. तो जब ऑडियंस इस तरह के पात्र को देखती है तो उसका बहुत अच्छा मनोरंजन होता है. Yet they are lovers and still they are lovers. और इस सब के बाद भी दोनों प्रेमी पक्के प्रेमी हैं. तो ये जो नाटकीयता, इन दोनों के विचित्रता, जो पात्रों की विचित्रता है, उसके बाद प्रेम की प्रगाढ़ता, ये बहुत ही रोचक लगती है. Her poor comprehension doesn't trouble her at all. And another thing is that she is a country lass who doesn't comprehend things, who doesn't understand things. Still she is not at all bothered about it. यहाँ पर ऑड्रे का पात्र ऐसा बनाया गया है कि उसे समझ में भी कुछ नहीं आता है, लेकिन उसे कोई परेशानी भी नहीं है, उसे कोई चिंता भी नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रही हूं या क्या. वो अपने हाल में मस्त है. Touchstone observes that Audrey neither understands his intelligent remarks nor does she acknowledge his potential, and Touchstone is seeing that I am making intelligent remarks, she doesn't know. I am making witty remarks, she doesn't know. And she doesn't even acknowledge, because she doesn't know, she will never acknowledge. यहाँ पर टचस्टोन ये भी देख रहा है कि मैं इतने विवेकशील बात करता हूं, इतनी गहराई वाली बात करता हूं, ना इसके पल्ले पड़ती है, ना इसके समझ में आती है, ना ही ये कभी उसका कोई प्रत्युत्तर देती है, और ये अपने हाल में बिल्कुल खुश रहती है. Yet his heart overflows with love for her, and still in spite of this negligence he loves her. वो इतना नेग्लेक्ट कर रही है, अनजाने में ही सही या अपने ग्रामीण परिवेश के कारण जो उसके अंदर एक कमी है उसके कारण ही सही, फिर भी टचस्टोन उसे बहुत प्रेम करता है. Her lack of concern for Touchstone's witty remarks amuses Jacques. Now, although Touchstone is unaffected, but Jacques is amused. टचस्टोन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जेकस का बड़ा मनोरंजन हो रहा है जब वो देख रहा है कि टचस्टोन इतना प्रेम कर रहा है, इतनी बातें बोल रहा है, इतने दार्शनिकता दिखा रहा है, और ऑड्रे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. He finds Touchstone's utterances full of philosophical knowledge and appreciates his wit and wisdom. Now, Jacques understands the wit and wisdom hidden in the dialogues of or in the thoughts of Touchstone, and he understands it very well. Jacques Touchstone के वक्तव्यों में छुपे हुए विवेक को या निपुणता को
बहुत अच्छे से समझ रहा है और वो ये भी देख रहा है कि उस इतने अच्छे, इतने विवेकपूर्ण वक्तव्यों को ऑड्रे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है. This adds a richer vein of humor in this merry comedy. Now, this aspect is very useful in creating the comic element in the drama. Because when the audience sees that the poor lover is not being reciprocated for his qualities, then the audience enjoys the fun. यहाँ पर ये जो पक्ष है या ये जो दो पात्रों का व्यवहार है, टस्टोन का इतना विवेकपूर्ण होना लेकिन ऑड्रे का उसको कोई भाव नहीं देना, ये दर्शकों को बहुत आनंद वर्धक लगता है, मनोरंजक लगता है. These characters, though minor, add a lot of spice to the storyline of the drama. And Shakespeare has added a lot of spice to the drama, the storyline of the drama, by adding these minor characters. और इन छोटे छोटे पात्रों को गढ़ करके शेक्सपियर ने अपने नाटक की कहानी को बहुत रोचक बना लिया है. Let us see the explanatory notes for this part of the drama. आइए नाटक के इस हिस्से के लिए कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं जिनको देख करके हमें इस हिस्से को समझने में सुविधा होगी. पर्टिकुलर, नॉट जनरल. विशेष, खास, सबके लिए नहीं. निश्चित. डिटेल्ड और एग्जैक्ट, विस्तार युक्त, विस्तृत या एकदम सही. क्वालिटी, हाउ गुड और बैड समथिंग इज. किसी वस्तु की उत्कृष्टता का स्तर, कम या अधिक. गुणवत्ता, अ हाई स्टैंडर्ड और लेवल, उच्च स्तर, दर्जा या कोटि. रियलिस्टिक, sensible and understanding what it is possible to achieve in a particular situation. स्थिति विशेष में जो हो सकता है उसे बुद्धिमानी से समझते हुए, स्थिति की असलियत को समझते हुए. Showing things that as they really are, वस्तुओं को उनकी वास्तविकता में दिखाते हुए. वास्तववादी. कंट्रीलेस, अ विलेज वुमेन और अनसोफिस्टिकेटेड यंग लेडी. ग्रामीण परिवेश के रहन सहन और आचार विचार वाली युवती. कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और थिंग्स that shows the differences between them. दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना जो उनमें अंतर स्पष्ट करती हो. To compare people or things in order to show the differences between them. दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर दिखाने के लिए तुलना करना. Pastoral, connected with the work of a priest or a teacher, giving help and advice on personal matters rather than on matters of religion or education. पुरोहित या शिक्षक द्वारा किसी को निजी मामले में न कि धर्म या शिक्षा पर सलाह देने से संबंधित पुरोहितीय शिक्षकीय. कनेक्टेड विद प्लेजेंट कंट्री लाइफ, रमणीय ग्रामीण जीवन से संबंधित. कंसर्न्ड, वरीड एंड फीलिंग कंसर्न अबाउट समथिंग, किसी के लिए चिंतित और परेशान होना. कार्नल, ऑफ और कनेक्टेड विद द बॉडी और सेक्स, शरीर या काम क्रिया से संबंधित. दैहिक,
अथवा शारीरिक। चेस्ट, प्योर, मॉडेस्ट, decent, free from all taint of what is lewd or salacious. Chaste primarily implies a refraining from acts or even thoughts or desires that are not virginal or not sanctioned by marriage vows, never having had a sexual relationship or only with the person somebody is married to. कभी यौन संबंध नहीं रखा या दंपति तक सीमित यौन संबंध। Here the concept of chastity has been attached to the type of love that Touchstone and Audrey profess to each other. यहां पर ये जो चेस्ट या चेस्टिटी का कॉन्सेप्ट है, ये टचस्टोन और ऑड्रे के पात्र द्वारा जो प्रेम का स्वरूप बताया गया है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। रोमांटिक, having a quality that strongly affects your emotions or makes you think about love, showing feelings of love. भावुकतापूर्ण और प्रेमोद्दीपक, प्रेम दिखाने वाला, रूमानी। बॉर्डरी, ऑब्सीनिटी इन स्पीच और राइटिंग, बोलने या लेखन में अशालीनता। कनेक्टेड विद सेक्स इन अ वे that most people find disgusting and which causes offense. Ashleel, very large in size or amount in a way that some people find unacceptable. आकार या मात्रा की दृष्टि से इतना अधिक कि अशोभनीय लगे। Now this is actually the concept of the time, the concept of the trend of the society which exists at a particular point of time. ये एक समय विशेष पर समाज का जो चलन होता है उससे जुड़ा हुआ एक भाव है आचरण का। Endorse, to say publicly that you give official support or agreement to a plan, statement, decision, etc. किसी योजना, घोषणा, निर्णय आदि का सार्वजनिक तौर पर या अधिकृत रूप से समर्थन करना। Keen, very interested in something, wanting to do something, किसी बात में बहुत रुचि रखने वाला, कुछ करने का इच्छुक, लालायित, उत्सुक। About one of the senses of feeling, etc. Good or strong, इंद्रियानुभूति, मनोभाव आदि। अच्छा या पुख्ता, पैना, तीक्ष्ण। Verbal, connected with words or the use of words, शब्द या शब्द प्रयोग से संबंधित, शाब्दिक। स्पोकन, नॉट रिटन, मौखिक, न कि लिखित। एक्स्ट्रावेगेंसेस, exaggerated, more than is usual, true or necessary, अतिशयोक्तिपूर्ण, सामान्य, यथार्थ या आवश्यकता से अधिक, spending or costing too much money, फिजूल खर्च या बेहद महंगा, invisible, that cannot be seen, जो दिखाई न दे, अदृश्य, arrow, a thin piece of wood or metal with one pointed end and feathers at the other end
that is shot by pulling back in the string on a curved piece of a wood. A bow and letting go. तीर या बाण, the sign which is used to show direction, दिशा निर्देशक संकेत. The word arrow has been used by in many places in the play by the lovers. Like Sylvius says to Phoebe, you do not know how deep your arrow strikes me. The arrow of love strikes me. यहाँ पर एरो बाण कई पात्रों द्वारा प्रयुक्त किया गया है. यहाँ पर सिल्वियस फीब से बोलता है कि तुम्हारा बाण, तुम्हारा तीर कितना गहरा जाकर के चुभता है और कितना गहरा घाव करता है, ये तुम्हें पता ही नहीं है. प्रोफ्यूजन, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा या प्रचुरता. स्पोरेडिक, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, अनियमित रूप से किया गया या होने वाला. स्कैटर्ड, spread over a large area or happening several times during a period of time. इधर उधर बिखरा हुआ या एक समयावधि में अनेक बार घटित. Woo, try to gain the love of someone, especially with a view to marriage. विवाह के उद्देश्य से किसी से प्रेम करना. Humorous, अम्यूजिंग और फनी, विनोदी या हास्यपूर्ण. स्कफल, अ शॉर्ट नॉट वेरी वायलेंट फाइट, हाथापाई झड़प, दोस्ती में की गई हल्की फुल्की झड़प. कॉम्प्रिहेंशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की योग्यता अथवा बोध क्षमता. Intelligent, having or showing the ability to understand, learn and think. Clever, समझने, सीखने और सोचने की क्षमता से संपन्न, बुद्धिमान अथवा चतुर. Acknowledge, to show that you have seen or noticed somebody or something or received something. कुछ देखने, जानने या प्राप्त करने का संकेत देना. Potential, that may possibly become something, happen, be used, etc. जिसके कुछ होने, प्रयोग में आने आदि की संभावना हो, संभाव्य. The qualities or abilities that somebody, something has but that may not be fully developed yet. व्यक्ति या वस्तु में विद्यमान गुण या क्षमताएं जो अभी तक पूर्णतया विकसित नहीं हैं. Overflow, to be so full that there is no more space, पूरा भर जाने के कारण जगह न रहना, बह निकलना या उमड़ना. Amuse, to make somebody laugh or smile, to seem funny to somebody. किसी को हंसाना, किसी बात का मजेदार लगना. To make time pass pleasantly for somebody, to stop somebody from getting bored. किसी का जी बहलाना अथवा मनोरंजन करना. Utterance, talk, speech. Mere, utterance, phrase, sentence, अभिव्यक्त, कथन या उद्गार. Appreciate, to enjoy something or to understand the value of somebody or something. किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण पहचानना और उन्हें महत्व देना.
रसास्वादन करना। विट, द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। वाग वैदग्य, वाक चातुर्य, हाजिर जवाबी। Here, the concept of wit has been attached to the dialogues or remarks or statements of Touchstone. यहाँ पर wit या वाक चातुर्य या हाजिर जवाबी का जो कॉन्सेप्ट है ये टचस्टोन के स्टेटमेंट्स के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि वो बहुत हाजिर जवाब है और बहुत ही चतुराईपूर्ण स्टेटमेंट्स देता है। विजडम, द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस एंड जजमेंट्स बिकॉज ऑफ योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। ज्ञान या अनुभव के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, समझदारी, बुद्धिमानी अथवा अकलमंदी। माइनर, नॉट वेरी बिग, सीरियस और important when compared with others। जो अधिक बड़ा, गंभीर या आवश्यक न हो औरों की तुलना में। गौण, छोटा, कम या महत्वपूर्ण। Used in law, a person who is not legally an adult। कानून में इसका प्रयोग होता है अवयस्क, नाबालिग, 18 वर्ष से कम आयु का। Here the concept is of the minor characters. In this play, we find that the word minor has been used for the characters which are not very much prominent, but which play an important role in the storyline of the drama. यहाँ पर minor का प्रयोग उन पात्रों के लिए हुआ है जो मुख्य पात्र के बराबर बड़े तो नहीं हैं, लेकिन वो छोटे होते हुए भी कहानी या कथानक के साथ जोड़ने में और अपना एक रोल ऐसा वो प्ले करते हैं नाटक में कि उनकी अपनी एक अस्तित्व की स्थिति दिखाई देती है। स्पाइस, एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, उत्तेजना और दिलचस्पी। स्टोरी लाइन, the basic story or plot of the novel, play, film, etc. नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि की कथा वस्तु या मूल कथा। Here the storyline of the drama continues through all these events and the happenings that are shown through the characters। यहाँ पर स्टोरी लाइन या कथानक को अलग अलग घटनाओं और अलग अलग पात्रों के अलग अलग घटनाक्रम के साथ जुड़े हुए जो इनके गतिविधियां हैं उन सब के माध्यम से दिखाया गया है। Here we have seen Act 3, Scene 3, Part B। अभी हमने Act 3, Scene 3 का Part B देखा है। The story of the drama continues further. So to understand what happens next, we will have to go through the other videos that follow. नाटक की कहानी अभी हमने एक्ट 3 सीन 3 के पार्ट बी तक देखा है। नाटक इसके आगे भी है, कहानी अभी और आगे बढ़ेगी। उसके आगे देखने के लिए आप कृपया इसके आगे की वीडियोस भी देखें जिसमें आगे का घटनाक्रम दिखाया जाएगा। काइंडली सी द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो देखें। धन्यवाद। थैंक यू।